وزیرآباد میں سالگرہ کی انوکھی تقریب، لیکن انداز ایسا کہ دیکھنے والے بھی چونک گئے۔ 19 اور 20 سالہ نوجوانوں کو بجلی کے پول کے ساتھ باندھ کر پہلے ان پر انڈے توڑے گئے، مٹی والا پانی ڈالا گیا، مختلف کلر پانی میں ڈال کر سالگرہ بوائز کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ راہگیروں کو لگا جیسے کوئی مسلمان کو سرعام سزا دی جا رہی ہو، مگر حقیقت سامنے آئی تو سب حیران رہ گئے۔ دیکھیے بیورو چیف وزیرآباد جمشید شہزاد کی یہ دلچسپ اور انوکھی رپورٹ۔ سال بھر میں سب سے پیارا ہوتا ہے ایک دن، 100 دعائیں دے رہا دل تم کو آج کے دن۔ I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. ایک اشارے پہ تیرے میں وزیرآباد کے محلہ الہ آباد میں نوجوانوں نے سالگرہ منانے کا منفرد انداز اپنایا۔ دوستوں نے 19 سالہ عبدالرحمان اور اس کے 20 سالہ ساتھی کو پہلے بجلی کے پول کے ساتھ باندھا اور ان پر انڈے توڑنے کے ساتھ ساتھ مٹی والا پانی اور رنگوں کی بارش بھی کر دی۔ راہگیر پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی ملزمان ہیں جنہیں پکڑ کر سزا دی جا رہی ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ اچھا بھائی، آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ الہ آباد سے ہی ہیں۔ اور آپ سرگودا سے آئے ہیں؟ ابھی پہنچے ہیں۔ اور یہ آپ نے کیسے یہ جو ہے انوکھی سالگرہ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کا پروگرام؟ پہلے اس نے مجھے 2 سال پہلے کیا سرگودا جہاں پہ سردیوں کے اندر، جنوری کے اندر ہم نیا گیا تھے۔ کیوں بھائی، آپ سرگودا میں جا کے سیلیبریٹ کرتے رہے ان کو؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو کیسے فیل ہو رہا ہے آج آپ کی وزیرآباد میں جو ہے یہ انوکھی سالگرہ جو ہے وہ سیلیبریٹ ہو رہی ہے؟ کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ بہت برا فیل ہو رہا ہے۔ سرگودا سے آنے والے دوست کا کہنا تھا کہ اس کی سالگرہ پر بھی یہی رسم ادا کی گئی تھی اور اب عبدالرحمان اور اس کے ساتھی کے ساتھ بھی یہی سب کیا جا رہا ہے۔ انوکھا انداز، سنسنی خیز منظر اور یادگار سالگرہ ہے۔ وزیرآباد کی یہ سالگرہ دیکھنے والوں نے لمحہ حیرت بنی ہے، مگر دوستوں کے لیے یہ خوشی منانے کا نرالا طریقہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمشید شہزاد، آن نیوز، وزیرآباد۔ میں سب سے پیارا ہوتا ہے ایک دن، 100 دعائیں دے رہا دل تم کو آج کے دن۔ I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. ٹھٹھہ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں سندھ ترقی پسند پارٹی یونٹ جمپیر کی جانب سے شہر کے ڈرینج سسٹم کے ناقص انتظامات اور گندے پانی کے کھنجر جھیل میں اخراج کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ٹھٹھہ سے ممتاز علی سمو کی اس رپورٹ میں۔ سندھ ترقی پسند پارٹی یونٹ جھمپیر کی جانب سے شہر کے تباہال ڈرینیج سسٹم اور گٹروں کا گندا پانی کینجر جھیل میں ڈالے جانے کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں شہریوں، سیاسی سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ احتجاجی ریلی کی قیادت ضلع رہنما ناتھو خان بروئی، زما پالاری، کامریڈ حیدر شورو اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ مظاہرین جلوس کی صورت میں جھمپیر چوک پہنچے اور شدید نعرے بازی کی۔ رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کے باعث جھمپیر شہر کا ڈرینیج سسٹم مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے۔ متبادل راستہ نکالنے کے بجائے گندے پانی کو براہ راستہ کینجر جھیل میں چھوڑا جا رہا ہے، جسے کراچی سمیت سندھ کے لاکھوں عوام پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ صورتحال انسانی صحت اور زندگیوں کے لیے شدید خطرہ بن رہا ہے۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ جھمپیر شہر کے ڈرینیج سسٹم کو فوری طور پر بحال کیا جائے اور گندے پانی کا اخراج کینجر جھیل میں بند کیا جائے۔ بصورت دیگر اگلا احتجاج ڈی سی آفس مکلی کے سامنے عوامی دھرنے کی صورت میں ہوگا۔ رہنماؤں نے واضح کیا کہ کینجر جھیل سندھ کا قیمتی سرمایہ ہے، اسے آلودہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔
ओकाड़ा से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सुजात हुसैन बोतला। पंजाब कबड्डी चैंपियनशिप अहतमाम पजीर हो गई। साहिवाल रीजन की टीम पहले जबकि फैसलाबाद रीजन की टीम दूसरे नंबर पर रही। कबड्डी मैच देखने के लिए हज़ारों शहरी उमड़ आए। आल पंजाब कबड्डी टूर्नामेंट के मुकाबला जात जनाब स्टेडियम ओकाड़ा में हुए, जहां मुख्तलिफ रीजन्स की कबड्डी टीमों के खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। फाइनल मैच साहिवाल रीजन और फैसलाबाद रीजन की टीमों के माबेन हुआ, जबकि फातेह टीम साहिवाल रीजन रही। फैसलाबाद टीम ने टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन अपने नाम की। MNA रियाजुल हक जज, MPA चौधरी इफ्तिखार छच्चर और DPO राशिद हदायत फाइनल मैच के मेहमान खसूसी थे। ताहिर वहीद जज, जनरल सेक्रेटरी कबड्डी फेडरेशन पंजाब ने मिलकर तमाम मैचेस के इंतजामात अच्छे से सर अंजाम दिए। कबड्डी मैचेस के मुकाबला जात देखने हज़ारों शहरी उमड़ आए और खूब महसूस हुए। फाइनल मैच के अख्ताम पर खिलाड़ियों में कैश इनामात, मेडल्स और ट्रॉफियाँ दी गई। ओकाड़ा से संजनीत की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा सिटी रिवाल्वर पुलिस ने नकबजान सामल और सांवली गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 17 लाख से जायद मालियत का माली मसरूका बरामद। बरामदगी में 3 तोले तलाई जेवरात, 11 लाख रुपए नकदी और DVR कैमरे शामिल। मुलजिम ने स्वीट शॉप और रहायशी मकान से कीमती सामान चुराया था। पुलिस ने 100% रिकवरी करके असल मालकान के हवाले कर दी। DPO राशिद हदायत ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा, शाबाश दी। कोटली लोहारा पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल एजाज सियाल ने काशिफ वड़ाइच को हालिया सैलाब के दिनों में वेलफेयर काम करने पर खसूसी शील्ड दी और इनको अच्छे अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। मज़ीद सुनते हैं इनकी ज़ुबान। बंदा जो ट्रैक्टर के पे बैठ के इसने समंदर से लोगों को एक एक घर में से निकाला, नहीं रेस्क्यू किया, वहाँ फंसे हुए लोगों को खाना, तो ये 24 घंटे बंदा एक्टिव रहा। ये कुछ नहीं है, ये एक ऐसी लोहे या शीशे की स्लेट है जिस पे ये लफ्ज़ लिखने वाले हैं अनमेट, इनकी खिदमत के ये पत्थर पे लकीर की तरह हो। ठीक है, अल्लाह ताला ये इनको इसकी जज़ा दे सकता है। हम सिर्फ उनमें एक वो साइनिंग अथॉरिटी से काम कर रहे हैं। ठीक है, और इनकी खिदमत पूरी कोटली के अंदर इंसानी खिदमत के लिए ऐसी हैं जिसको किसी लिहाज से अल्लाह ताला के अलावा कोई इसका अजर नहीं दे सकता, और वो काउंटेबल भी नहीं, उनको शुमार में भी नहीं ला सकते। ये वो लोगों के घरों के अंदर सीने सीने पानी था, ये घरों में भी पहुँचे, ये गली बाज़ारों में पहुँचे, इन्होंने मरीज़ हॉस्पिटल भी पहुँचाए हैं और बाहर रेस्क्यू किए हैं। और उन दिनों में ये भाई काशिफ ऐसे लगता था कि ये वैसे ट्रैक्टर ट्राली पे काम करते हैं, यानी इतनी अनमेट होकर के, और इसकी परवाह भी नहीं की है। ठीक है ना, ये जो खिदमत खल्क है इसके लिए बंदा अपने तौर पे नहीं पेश करता, ये कहीं और कबूल होती है, वहाँ से ड्यूटी लगती है। तो खालिक की इस खल्क की खिदमत वही लोग करते हैं जो चुने हुए होते हैं। तो इस लिहाज से आपको सर मुबारकबाद कि आप उन हसीन तरीन बंदों में उस हसीन तरीन काम के लिए आपका इंतखाब हुआ है कि हमारी ये जो है छोटा सा हदिया तशक्कुर है इस तमाम इलाके की आवाम की तरफ से। अल्लाह ताला की हजूर दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको इसके लिए जज़ाए खैर और खैर कसीर अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मशकूर हूँ सर का, पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इन्होंने हमें इनवाइट किया, मुझे, मेरी सारी टीम को, और बहुत अच्छा हमारी जो है ना उन्होंने तवाज़ो की, चाय वगैरह। सबसे बड़ी बात इनसे मिल के बड़ी खुशी हुई। बहैसियत है कि इंसान बहुत अच्छे इंसान है, और यकीन माने आज की इस मीटिंग में इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। ये दुनियावी जो सलाब के दिनों में जो भी किया है खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए किया, ये दुनियावी एजाज़ों के लिए नहीं था किया। इन्होंने बुलाया, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनका, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे इस चीज़ की। और कोटली लोहारा में मेरे लायक और एक दो काम के हवाले से ये दर्द दिल रखने वाले लोग हैं कोटली लोहारा के लिए, और इनके पास काफ़ी मसाइल का हल भी है, पढ़े लिखे बंदे हैं। एक दो इन्होंने टॉपिक पे बात की है, सुन के बड़ा अच्छा लगा, मुशावरत हुई उस हवाले से। ये जो पानी खड़ा होता है मैं इनके साथ हूँ, बल्कि हर लिहाज से इनके साथ हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उस हवाले से जो भी हम कर सकते हैं हम करते हैं। तो दुआ गो रहिएगा, अल्लाह ताला वो जो किया है उसको कबूल करे। ये नाला जो है सामने से लेके आगे तक जा रहा है, इस हवाले से बात हुई है कि इसके ऊपर कुछ करते हैं। वो पठान या सब इस तरह के कोई हार्ड वर्कर जो हैं, प्राइवेट लेबर हार्ड वर्कर जो हैं,
उनको ला के कोशिश करते हैं इस नाले को मुकम्मल तौर पे साफ़ करवाते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जैकबाबाद सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज 5वें रोज़ भी जारी। हुकूमत मुखालिफ नारे, अलामती भूख हड़ताल। जैकबाबाद आल सिंध एम्प्लॉइज़ एलांस की कॉल पर सरकारी मुलाजमीन की जानब से हुकूक के असूल के लिए एहतजाजी तहरीक 5वें रोज़ भी जारी रही। जैकबाबाद में मुल्की तंजीमों के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी रैली निकाली, जो सख्त गर्मी के बावजूद जोश व जज्बे के साथ जारी रही। एहतजाजी रैली की क़ियादत नसीबुल्लाह खोसो, इंतज़ार हुसैन छलगरी, अब्दुल जब्बार खोसो और दीगर रहनुमाओं ने की। रैली में प्राइमरी स्कूल से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई DC चौक पहुंची, जहां शुरा ने धरना दिया। DC चौक पर धरने के दौरान मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और 3 घंटे तक अलामती भूख हड़ताल कैंप कायम किया। धरने में सरकारी मुलाजमीन के साथ खवातीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जो नए कवानीन बनाए हैं वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुजाहिरीन ने DRA अलाउंस, पेंशन रूल्स, ग्रुप इंश्योरेंस और बेनवलेंट फंड में की गई तब्दीलियाँ मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ हैं। उन्होंने मुतालबा किया है मुलाजमीन को दी जाने वाली साबिक़ अमरात बहाल की जाएँ और DRA, पेंशन रूल्स, ग्रुप इंश्योरेंस और बेनवलेंट फंड पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए ताकि मुलाजमीन में फैली बेचैनी ख़त्म हो सके। मुकर्रिरीन ने ऐलान किया है जब तक हुकूमत इनके जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं करती एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर थाना सिटी पुलिस ने नकबजान सामल उर्फ सांवरी गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 17 लाख रुपए मालियत का माली मसरूका बरामद। दीपालपुर थाना सिटी पुलिस की नकबजान सामल उर्फ सांवरी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 17 लाख से जायद मालियत का माली मसरूका बरामद। बरामदगी में 3 तोले तलाई जेवरात, 11 लाख रुपए नकदी और DVR कैमरे शामिल। मुलजिम ने स्वीट शॉप और रहायशी मकान से कीमती सामान चुराया था। पुलिस ने 100% रिकवरी करके असल मालकान के हवाले कर दी। DPO राशिद हदायत ने पुलिस कारकर्दगी को सराहा, शाबाश दी। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की हदायत पर SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद के ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में इंचार्ज कंप्लेंट सेल समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। SSP मोहम्मद नवीद ने शहरों की शिकायत और मसाइल सुनते ही शिकायत के इज़ाले के लिए मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। उन्होंने चंद शिकायत पर मुतल्लिका अफसरान को कॉल करके अहकामात जारी किए। इस मौके पर उन्होंने नाकस तफ्तीश पर मुतअद्दिद इंचार्जेस की सरजनश और शोकास नोटिस जारी किए। इस मौके पर उनका कहना था कि तफ्तीशी अफसरान मेरिट पर मुकदमात की यकसुई करें। खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान राब्ते की फ़िज़ा बरकरार रखना है। बर वक्त इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा रहा है। इनका मज़ीद कहना था कि शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी पर ही अमन व अमान का क़याम मुमकिन है। SSP इन्वेस्टिगेशन मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से अवामुन्नास की शिकायत का फौरी इज़ाला किया जा रहा है। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ और मेरिट पर इंसाफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इन्वेस्टिगेशन अफसरान आने वाले शहरियों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आएँ और कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाएं। शहरियों की मुश्किल की हर घड़ी में इनके शाना बशाना खड़े हैं। अवामुन्नास के मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। खबर शामिल करते हैं मामू कांचन से। हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांचन मुगल आज़म मार्की में वकला बरादरी के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशायात दिया। मामू कांचन मुगल आज़म मार्की में इलेक्शन 2025 से 2030 पंजाब बार कौंसिल टोबा टेक सिंह इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार बराए मेंबर चौधरी तनवीर हुसैन कोंटा और चौधरी एजाज अहमद साबिका मेंबर पंजाब बार कौंसिल टोबा टेक सिंह की आमद हुई, जिसमें तांत्यावाला बार टोबा टेक सिंह जंग से ताल्लुक़ रखने वाले वकला की तकरीब में शिरकत। तकरीब का बाकायदा आगाज़ लावत इकरामी बाग से हुआ। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ तजम्मुल नफीस ने अदा किए। जंग बार कौंसिल के मेंबर गुलाम अली ने वकला बरादरी से इजहार ख्याल भी किया। मेंबर पंजाब बार कौंसिल की सीट टोबा टेक सिंह के उम्मीदवार चौधरी तनवीर हुसैन कोंटा ने चौधरी बाबर गुलजार वालहा, चौधरी साकब गुलजार वालहा, चौधरी आसफ मसूद वालहा। मेंबर पंजाब बार कौंसिल की सीट टोबा टेक सिंह के उम्मीदवार चौधरी तनवीर हुसैन कोंटा ने चौधरी बाबर गुलजार वाहला, चौधरी साकब गुलजार वाहला, चौधरी आसफ मसूद वाहला एडवोकेट और मोहम्मद अहमद वाहला एडवोकेट का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने शानदार तकरीब का अहतमाम किया। तकरीब में साबिका MPA चौधरी शाहद हलील नूर, साबिका किसान कौंसलर चौधरी मतीन खान वाहला, तालिब हुसैन कोराई तांत्यावाला बार के सेक्रेटरी मेहर अली रज़ा, साबिक सदर बार
مہر مجاہد، ملک توقیر، ایڈوکیٹ رانا سجاد، ایڈوکیٹ مصطفیٰ وٹو ایڈوکیٹ سمیت دیگر وکلاء، سیاسی سماجی شخصیات نے تقریب میں شرکت کی اور مکمل سپورٹ کا اعلان بھی کیا۔ آہور میں امیدوار برائے ممبر پنجاب بار کونسل ٹوبہ ٹیک سنگھ چودھری تنویر حسین کونٹا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں چودھری شاہد خلیل نور صاحب سابق MP اور بابر گلزار صاحب، طالب کرائی صاحب، غفور کرائی صاحب کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے اور آصف والا صاحب، احمد والا کا بھی بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے یہ محفل میرے لیے سجائی اور یہ اتنا بڑا انتظام میرے لیے کیا اور مجھ پر یہ احسان کیا۔ تو اس کے بعد میں دوستو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ تاننے والے بار میری اپنی ہوم بار ہے۔ پچھلی بار بھی آپ نے مجھ پر بہت شفقت کی اور مجھے سائزیبل ووٹوں سے جتوایا یہاں سے۔ ٹھیک ہے میں ہار گیا، زندگی میں ہار کر ہی بندہ جیتتا ہے۔ میں 250 ووٹ سے ہارا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، آج کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور میں لیڈر نہیں ہوں، میں ورکر ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے چنا تو میں ایک ادنا ورکر کے طور پر آپ کی خدمت کروں گا۔ جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں کاموں کے سے ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق ایجوکیٹر سادو کے کیمپس میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات یوم دفاع نہایت پروقار انداز میں منعقد ہوئی۔ تقریب کا آغاز صبح 10 بجے تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا، جس کے بعد قومی ترانہ بلند آواز میں پڑھا گیا۔ فضا حب الوطنی کے جذبوں سے گونج اٹھی۔ یوم دفاع کے رنگا رنگ پروگرام طلباء طالبات نے ملی نغمے، ولولہ انگیز تقاریر اور ٹیبلو پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے۔ وطن عزیز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاکستان کی سلامتی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ ننھے طلباء کا خوبصورت ٹیبلو حاضرین کے توجہ کا مرکز بنا رہا۔ ان حالات کا اظہار ڈائریکٹر آف دی اسکول محمد اسلام مغل، ڈپٹی ڈائریکٹر زین الاسلام مغل، پرنسپل سادو کے کیمپس سدرۃ المنتہا نے خطاب کرتے ہوئے کہا، علم، اخلاق اور محنت انسان کی اصل پہچان ہے۔ نوجوان پاکستان کا حقیقی سرمایہ ہیں۔ انہوں نے طلباء کے لیے نیک تمنائیں پیش کی اور کہا کہ نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو ملک و قوم کی خدمت کے لیے بروئے کار لانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں طلباء کو مزید کامیابیوں کے لیے دعا دی اور والدین اساتذہ کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ طلباء، اساتذہ اور کامیاب طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اساتذہ کو بہترین کارکردگی پر خصوصی شیلڈ سے نوازا گیا، جس سے ان کی حوصلہ افزائی میں اضافہ ہوا۔ اس موقع پر پرنسپل آف دی گلوبل اکیڈمک کاموں کے کیمپس ڈاکٹر سائمان ناز نے بھی شرکت کی اور بچوں میں انعامات تقسیم کر کے ان کی کارکردگی کو سراہا۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ میں ساہیوال ڈپٹی کمشنر شاہد محمود نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ کھیلوں میں ضرور حصہ لیں، کیونکہ ان سے اسپورٹ میں اسپرٹ پیدا ہوتی ہے اور جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ذہنی طاقت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مختلف کھیلوں میں ٹیلنٹ کے فروغ کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں، جس میں سول سوسائٹی بھی اپنا کردار ادا کرے۔ وہ یہاں ساہیوال کلب میں ڈویژنل ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل کے بعد تقریب تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ٹورنامنٹ کے ڈبل فائنل میں ڈاکٹر علی نواز اور حذیفہ آصف نے آصف راؤف اور شیخ ذیشان کو ایک سخت مقابلے کے بعد 6-3 اور 6-4 سے ہرا کر فائنل میں کامیابی حاصل کی۔ فائنل میچ میں ساہیوال کلب کے سیکرٹری شیخ عظمت سلیم، سابق سیکرٹری میاں حبیب انجم اور ممبران کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی اور ہر شاٹ پر کھلاڑیوں کو دل کھول کر داد دی۔ اس سے پہلے سنگل فائنل شیخ ذیشان اور ڈاکٹر علی نواز کے درمیان ہوا، جو شیخ ذیشان نے 6-2 اور 2-6 کے اسکور سے جیتا۔ ٹورنامنٹ میں ڈویژن پر سے 11 ٹیموں نے سنگل اور ڈبل ٹینس مقابلوں میں حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ساہیوال شاہد محمود نے ٹورنامنٹ میں شریک کھلاڑیوں اور آفیشلز میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ حافظ آباد سے ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد پنڈی بٹیاں کوٹ حسین اور چاق مرزا والے بند کے درمیان سے ڈیڈ باڈی برآمد، انتظامیہ کی غفلت عیاں۔ تفصیلات کے مطابق حافظ آباد پنڈی بٹیاں کے نواحی گاؤں کوٹ حسین اور چاق مرزا والے بند کے درمیان آج صبح مقامی لوگوں نے ایک ڈیڈ باڈی کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا۔
इतला मिलते ही इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 को फ़ोन करके वाक़े की निशानदेही की। ताहम 2 घंटे गुजर जाने के बावजूद ना तो रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और ना ही किसी इंतज़ामी ऑफिसर ने जाए वक़ुआ का रुख किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डेड बॉडी बदस्तूर पानी में पड़ी हुई है और अहले इलाका अपनी मददाब के तहत सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। शहरियों ने इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा, इंसानी जानों से इस कदर लापरवाही और ताख़ीर इंतज़ामी कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर रेस्क्यू एहलकार बर वक्त पहुँच जाते तो न सिर्फ डेड बॉडी को पानी से निकाला जा सकता था बल्कि ज़रूरी कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती थी। इस ताहीर ने मकामी आबादी को सह तशवीश और बेचैनी में मुब्तला कर दिया है। सक्खर से हमारी क्राइम रिपोर्टर मीना खान की खबर के मुताबिक रोहड़ी तलका अस्पताल में नौमौलूद बीमार बच्ची के लवाहिकीन का रेस्क्यू 1112 टीम के खिलाफ एहतजाज। बच्ची के वारिस बरकत शेख ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम अलिफ कच्चा के रहायशी हैं और इस वक्त दरिया में पानी की तूहियानी के बाइस बचाव बंद पर मुकीम हैं। 4 घंटे कबल पैदा होने वाली मासूम बच्ची की तबीयत ख़राब होने पर हम इसे तलका अस्पताल रोहड़ी ले आए। अब इब्तदाई इलाज के बाद बच्ची को डॉक्टरों ने चिल्ड्रन अस्पताल सक्खर रेफ़र किया, जिसके बाद हमने रेस्क्यू 1112 से रब्ता किया। इनका मज़ीद कहना था कि रेस्क्यू 1112 टीम ने यह कहकर बच्ची को ले जाने से इनकार कर दिया कि जब तक हमें चिल्ड्रन अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से समरी आर्डर नहीं मिलता हम मरीज़ को वहाँ मुंतकिल नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर आप ज़िला सक्खर की किसी और अस्पताल का कहेंगे तो हम मरीज़ को वहाँ मुंतकिल कर सकते हैं। बाद मासूम बच्ची को डॉक्टरों ने सिविल अस्पताल सक्खर रेफ़र कर दिया। बच्ची के बुरसा ने सिंध हुकूमत और मुंतब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए और बेसहारा लोगों को मासूम बच्चों को सहूलियात फराहम की जाएँ। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर अहमद अली। वज़ीर पंजाब की खसूसी हदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस, लाहौर महकमा माहौलियात और दीगर इदारों की स्मोक से पाक माहौल के लिए वाक और फ्लैग मार्च। CTO लाहौर की खसूसी शिरकत वाक सेंटर पॉइंट से लिबर्टी तक हुई, जहां से बाद में ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारों की मोटरसाइकिल रैली और फ्लैग मार्च हुआ। इस मौके पर CTO डॉक्टर अतर वहीद का कहना था, साफ़ हवा हर शहरी का बुनियादी हक है ताकि वो सेहतमंद और तवाना ज़िंदगी गुजार सके। हम सबको मिलकर अब समझना होगा कि फ़ज़ाई आलूदगी सेहत और ज़िंदगी के लिए किस कदर ख़तरनाक है। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के तदारक के लिए तमाम इदारों के साथ शहरियों को इदारों का साथ देना होगा। माहौल को स्मोक से पाक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस लाहौर का रोज़ाना की बुनियाद पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन जारी है। RC इंटरटेनमेंट की सदर मुमताज़ समाजी कमेटी और सियासी शख्सियत रज़िया चौधरी ने ईजी ई मनी के चेयरमैन डॉक्टर लियाकत मलिक, साबिक रुकन यूरोपियन पार्लियामेंट डॉक्टर सजाद हैदर करीम, मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान, साबिक लॉर्ड मेयर कौंसलर आबिद चौहान और पाकिस्तानी कौंसलेट मैनचेस्टर में नई तैनात कौंसलर जनरल इम्तियाज़ फ़िरोज़ गोंदल के एजाज़ में मैनचेस्टर के मकामी रेस्टोरेंट हॉल में खुसूसी इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें कम्यूनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की, जिनमें महमूद असगर चौधरी, नुगमाना कमल शेख, मलिक इमरान खलील, चौधरी रिजवान नसीर, साबिर रज़ा, चौधरी सईदुल्ला मतबर, चौधरी सिकंदर नबील भट्ट, जुल्फ़कार मेहर, नदीम खान, राना ज़ियाउल इस्लाम, फ़ारूक अहमद, एडवोकेट फ़ाइका गुल साहबजादा शामिल थे। इस मौके पर आबिद चौहान, डॉक्टर सज्जाद करीम, अफसल खान को खसूसी शील्ड भी दी गई। निज़ामत के फ़राइज़ अदील चौधरी ने अदा किए। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ चौधरी, ब्यूरो चीफ, नॉर्थ वेस्ट ऑन न्यूज़ बरतानिया। इस मौका पर कौंसल जनरल इम्तियाज़ फ़िरोज़ गोंदल ने कहा कि तकरीब की ख़ास बात कि इसमें तमाम मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की, जो कम्यूनिटी के बाहमी इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की अलामत है। रज़िया चौधरी मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। डॉक्टर लियाकत मलिक ने कहा कि कम्यूनिटी के अंदर बाहमी इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ को फ़रोग़ देने में रज़िया चौधरी का किरदार मिसाली है। डॉक्टर सज्जाद हैदर करीम और आबिद चौहान ने कहा कि कम्यूनिटी को इकट्ठा रखने और इनके अंदर बाहमी हमआहंगी को फ़रोग़ देने में रज़िया चौधरी का किरदार इंतहाई ठोस व पुख्ता है। वो हमेशा कम्यूनिटी को इकट्ठे मिल बैठने का मौका फराहम करती है। रुकन बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान और महमूद असगर चौधरी ने कहा कि कम्यूनिटी के अंदर बाहमी इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ और हमआहंगी को फ़रोग़ देना मुश्किल काम होता है, जो कि रज़िया चौधरी ने खुश असलूबी से अंजाम दे रही है। उन्होंने कम्यूनिटी के लिए नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को भी सराहा है, जो कि खुशाइंद बात है। मलिक इमरान खलील, चौधरी रिजवान नसीर ने कहा कि कम्यूनिटी के अंदर
बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुस्बत है। साबर रजा और नगमाना शेख अमल ने कहा कि कम्युनिटी को जोड़ने में रजिया चौधरी का किरदार काबिल सताइश व फख्र है। दूसरे शुरका ने आज की तकरीब में मुनक़्क़द करने पर रजिया चौधरी का शुक्रिया अदा किया। मेज़बान रजिया चौधरी ने तमाम मेहमानों का दिली शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कम्युनिटी के अंदर बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक व हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए आइंदा भी अपना किरदार अदा करती रहूँगी। Mrs. Razia Chaudhary, as we say, always an honor to attend a party, and she invites all the community together. हमेशा ऐसे अपनी पॉकेट से पैसे खर्च के लोगों को बुलाती है, इंटरनेट के लोगों में नेटवर्किंग होती है, and I'm so happy. I wish there are so many people like her. Well, I'm delighted to attend this event on the invitation of Madam Razia Chaudhary. She is a real community activist who plays a solid role in making sure that the community is always provided with opportunities to come together, socialize and have an exchange of dialogue. हमारी रज़िया बहन ने प्रोग्राम किया है जिसमें हमारे कम्युनिटी के मुख्तलिफ लेवल में पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारी बिजनेस लीडरशिप है, प्रोफेशनल लीडरशिप है, सब लोगों को जमा किया है। अपने सबों के अंदर इसका इत्तेहाद पैदा करना भी बहुत बड़ा काम है। फिर जो लोग उन्होंने नुमाया काम किया हुआ है उनको आज एक्नॉलेज भी किया गया है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो हौसला अफजाई होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। और इसके साथ जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको इनकरेज करना जो है ये बहुत बड़ी काम है। तो हमें इस तरह मिल के आगे बढ़ाना है ताकि इस माशरे के अंदर हमारा अच्छा खासा वजन होना चाहिए, हमारी सेहत होनी चाहिए और दूसरों के साथ अलायंस बिल्ड होनी चाहिए। ये ज़रूरत है वक्त की। आज शाम रज़िया चौधरी साहिबा ने आरसी एंटरटेनमेंट की तरफ से पाकिस्तान के दो ब्रिटिश पाकिस्तानी जिन्होंने यहाँ की सियासत में और सोशल लाइफ में एक नुमाया मुकाम हासिल किया, उनके एजाज़ में ये तकरीब की थी। अफजल खान साहब और आबिद खान साहब ये इंतहाई बहुत ज़बरदस्त उन्होंने तकरीब का इनकाद किया। इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये कि यहाँ पे हर तबका फ़िक्र के लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी से और तमाम मीडिया के लोग दोस्त भी शामिल थे। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने बहुत ही कामयाब और बहुत ज़बरदस्त थैंक यू। रज़िया चौधरी साहिबा ने एक बिल्कुल मुनफरिद नोयत का प्रोग्राम किया है। पहली दफ़ा एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें कोई मैसेज भी था, जो डिग्निटीज को बनाया गया था, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो पॉलिटिशियन हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो आज बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त करंट सिचुएशन बनी हुई है बरतानिया में, उसके लिए ज़रूरत है कि हम सब मिलकर इसके लिए लाए अमल बनाएं और कम्युनिटी को भी यकजा होकर बताना पड़ेगा कि ये हमारा मुल्क है और हमें इसके साथ प्यार करना चाहिए। और इस वक्त इंटीग्रेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, तो मैं समझता हूँ एक बहुत कामयाब प्रोग्राम है। रज़िया चौधरी की तरफ से जो गुज़श्ता कई दहाइयों से ये काम कर रही हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश करती हैं। और इसमें आज इम्तियाज़ गोंदल साहब हैं जो हमारे न्यू कौंसल जनरल हैं, और सज्जाद करीम हैं, राजा अफजल खान हैं, आबिद चौहान हैं, उन सब की एजाज़ में ये प्रोग्राम है। और अदील चौधरी ने इसको बहुत अच्छा पेश किया। और माया जी रज़िया चौधरी साहबा ने प्रोग्राम कराया है जी कौंसल जनरल इम्तियाज़ फिरोज गोंदल साहब के एजाज़ में। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। कम्युनिटी के जितने बंदे थे वो सारे इसमें शामिल थे। तो माशाल्लाह जी गोंदल साहब को हम वेलकम करते हैं। और जिस तरह पाकिस्तानी कौंसलेट में तब्दीली आई है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह गोंदल साहब मजीद बेहतरी करेंगे जी। आज ही माशाल्लाह आरसी एंटरटेनमेंट की तरफ से रज़िया चौधरी ने आज सारे मानचेस्टर कम्युनिटी को इकट्ठा किया था, क्योंकि हमारे नए कौंसल जनरल आए यहाँ पे। गोंदल साहब उनके ऑनर में खूबसूरत शाम का एहतमाम किया, खूबसूरत खानों का इंतजाम किया, मज़े खाने थे। कम्युनिटी के साथ आज बैठने का, गोंदल साहब से मिलने का, और हमारे लोकल एमपीज और हमारे बहुत से जो है हीरे जो इस मानचेस्टर की एक पहचान है, उन सब के साथ मुलाकात हुई। एक मैसेज अच्छा नहीं हुआ जो मैं समझता हूँ कि गोंदल साहब के लिए, कम्युनिटी के लिए इकट्ठे होकर चलना, पाकिस्तान को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जो प्रोग्राम था वो रज़िया बाजी ने हमेशा की तरह जो है खूबसूरत कम्युनिटी को यहाँ पे इकट्ठा किया। और जो हमारे खासकर चीफ गेस्ट थे यहाँ पे इम्तियाज़ गोंदल साहब जो नए सीजी हैं हमारे, उसके अलावा अफजल खान साहब और आबिद चौहान साहब जो सबका लॉर्ड मेयर है मैनचेस्टर के, तो उन सबको यहाँ पे इकट्ठा किया। और एक मैं समझता हूँ कि एक शानदार प्रोग्राम हुआ है। आरिफ चौधरी, ब्यूरो चीफ, नॉर्थ वेस्ट, बरतानिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।